Well, would like to invite our next speaker, Mr. Krishna Marathe, Managing Director and Company Founder, Swift, Technoplast, Mumbai. Requesting you, sir, to please come up on stage. Mr. Krishna Marathe, Managing Director and Co-Founder, Swift Technoplast Private Limited. Swift, well-known name engaged in manufacturing roto-molded and injection-molded industrial products with 2 decades of experience. He has worked across product development, customer solutions, quality systems, and pan-India and global customer base. Under his leadership, Swift Technoplast has developed a range of custom roto-molded products and has well-known name in pallets, containers, industrial segment. Krishna focuses on practical innovation, consistent quality, and disciplined processes in manufacturing. He is also known for his grounded approach and strong interest in learning technology and team development. His experience across industries and customer segments gives him practical insights on product design, customer expectation, and manufacturing practices. He believes in collaboration, knowledge sharing, and contributing to a stronger roto-molding community for future growth. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than Krishna Marathe. कर्सर नहीं चल रहा था अपने लगता है वो चल क्या रहा है साइन आउट करना एनीवे ये क्यों आ रहा है पीछे हाँ ठीक है So, good afternoon. Thank you, organizers, for inviting me as a speaker. As already Blaise has put a much light, in-depth knowledge about the custom roto-molding. So, my topic is also custom roto-molding, but I will try to put a light on design aspect and process discipline. So, about me, myself, Krishna Marathe, I'm a founder of a Swift Technoplast. We are into the non-water tank product, basically plastic pallet, road safety, and other products we are manufacturing for the many companies. And I'm a passionate roto-molder. I'm a basically designer, mechanical engineer by a profession, you can say. I'm a farmer too, from the Kolhapur. And I have done a design thinking from IIT, and I have done business management also. And I had a special interest in a psychology subject that I always use in manufacturing and while doing with the peoples. So what topic today we are going to cover? How do we convert customer idea into roto-molded products? Because
what we can do, principally, customer don't need a products. Actually, customer need solution. So how we can do it? And since, एक minute, sorry. And what are the scientific principles we follow to be in a custom molding? Then how to get your price and not just a cost. Because in rotational molding, what we are facing problem is that the price war everywhere while competing with, because rotational molding process, it is very easy entry. We can make a mold and we are having a great capability of see the products and copy products and make the products. So that capability, the capability is a good. That is a good understanding of the product is always a great. But while doing it, we always have to see whether we are going to get leverage of that product or not. Because while making any product, being into the business, we always have to say whether ROI we are getting it or not. So we will see how we can get the price. And third thing we are going to share, I will share the how will the case study of one of the customer I will share with you, and how we can earn the profit. Because I think rotomolding is having a great potential beyond water tank. And while doing the business, always we have to see why we are into the business. We should not forget why we are into the business. मैं ऐसे एक बिजनेस फोरम में गया था जहाँ पे आप कुछ लोग जानते होंगे, एक अनिल लांबा एक बिजनेस फाइनेंशियल गुरु है, और उनके एक ऐसे बिजनेस में बैठा था. तो उन्होंने मुझे पूछा, सब लोगों को पूछा कि भाई आप लोग क्या बिजनेस में हैं. तो उन्होंने ये बताया कि आप जो भी बिजनेस में हैं, कुछ लोगों ने आंसर दिए कि हम लोग अभी यहाँ पे जो भी है, कोई बोलेंगे मोल्डर है, कोई बोलेंगे हम लोग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग फलाना इंडस्ट्रीज़ में, किसी ने बोला फार्मा में हैं, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग में, किसी ने ट्रेडिंग में बोला. तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछे कि भाई टाटा कौन से बिजनेस में है, रिलायंस कौन से बिजनेस में है. तो उन्होंने अलग अलग नाम दिए. तो उन्होंने एक चीज़ बता दी है वो दिन, कि उन्होंने बताया दे ऑल आर इनटू द मनी मेकिंग बिजनेस. They all into. We should not lie ourselves, because at initially we are into the the money making business. So always we have to ensure that whatever we do, we should earn enough money so we can sustain. Unless we sustain, our industry also can't sustain. Our business will not sustain. So we have to ensure that we should get enough amount of money. How we will get, I will try to put a light on it. Okay. So basically what I understood, rotomolding industry, being into this industry, what are the challenges we are facing? As I said, the low price war, because rotomolding एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर इजीली एंट्री मिल सकता है, एंट्री हो सकता है, मशीन इजी है. आज के डेट में मतलब काफ़ी सारे मोल्ड मेकर्स है, वही डिज़ाइन बनाते हैं, एंड देन वी कैन इजीली एंटर इनटू द मार्केट. सेकंड, हम लोगों को ये रहता है कि हमारा प्राइस वार रहता है, कंपटीशन का बहुत प्रेशर रहता है. देन हम लोग प्रोडक्ट बनाते भी हैं. देन बाद में अभी समझो किसी ने बोला कि ये प्रोडक्ट दिखाया और उन्होंने बोला कि हमारे लिए प्रोडक्ट बना लीजिए. तो हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी क्या है हम लोगों को पूरी तरह से हम लोगों को मालूम नहीं रहती है. तो वो केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, वो हम लोग सैम्पलिंग लूप में जाते हैं और उसी चक्कर में हमारा कहीं सारा कॉस्ट हम लोग उसमें वेस्ट कर लेते हैं. सो ऑलवेज वी विल मतलब ये हमारा सिर्फ ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं, मतलब मेरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली ये हमारे रोटोमोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सबको प्रॉब्लम आती होगी, आई एम श्योर. सो हम लोग ये देख लेंगे कि हम लोग इसके ऊपर भी एक क्या कर सकते हैं. देन वाई वी आर इनटू दिस रोटोमोल्डिंग. आप सब लोगों को मालूम है कि हर एक मतलब कस्टम रोटोमोल्डिंग ही क्यों चाहिए, क्योंकि कस्टम रोटोमोल्डिंग इसीलिए चाहिए क्योंकि हर एक कस्टमर का नीड अलग अलग होता है. हम लोग एक ही कस्टम मोल्डिंग में एक है कि उसमें कस्टमर के नीड के हिसाब से हम लोगों को प्रोडक्ट बनाना होता है ऑलवेज. सो वन साइज डजंट फिट ऑल कस्टमर्स, सो ऑलवेज वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द कस्टमर नीड. सो इसके अंदर होने की वजह से हम लोगों को क्या मिलता है कि हम लोगों को कंपटीशन कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है. अगर हम लोग कस्टमर के साथ में बैठ के हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं मिलता है. सेकेंडली, हम लोगों को कस्टमर का ट्रस्ट मिलता है. जो भी कस्टमर के साथ में आप कनेक्ट होते हो, जुड़े रहे होते हो, वो कस्टमर आपको भी नहीं छोड़ता है क्योंकि आप लोगों ने उनके साथ में मेहनत की हुई है. तो आपका प्रॉफिट जो है उसमें आपका बरकरार रहता है. देन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मिलता है. और सेकेंडली, अनटैप्ड मार्केट पोटेंशियल, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं. अगर आप कस्टम मोल्डिंग में हैं तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले भी
कस्टम मोल्डिंग में ही रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि आप कस्टम मोल्डिंग में है और दूसरा कोई आपके पास में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो मतलब आपके पास में वही टाइप के प्रोडक्ट भी आते रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया, देन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा एज अ इंडस्ट्री इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। बिकॉज देखो इंडस्ट्री डेवलप अभी इंडिया में रोटो मोल्डिंग आने के बाद में मुझे लगता है कि 50 साल हो गए, बट इसके बावजूद भी हमारे आज के डेट में हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को रोटो मोल्डिंग क्या है ये पता ही नहीं रहता है। हम लोग बोलते हैं हम लोग मोल्डिंग में है, बोलते हैं कौन सा इंजेक्शन मोल्डिंग में, कितना टेनिस का मशीन है, ये पूछा जाता है। बिकॉज दे नो इंजेक्शन मोल्डिंग यानी मोल्डिंग है, तो रोटो मोल्डिंग के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है। और ये इंडस्ट्री डेवलप इतनी तरीके से हुई ही नहीं है, बिकॉज हम लोगों का जैसे अपने आज के डेट में भी 80-85% जो बिजनेस है हम लोग वाटर टैंक में करते हैं रोटेशनल मोल्डिंग इंडस्ट्री में। 10 से 15% जो बिजनेस है मेरे ख्याल से इसके अंदर रहेगा, हमारा कस्टम मोल्डिंग भी अंदर रहेगा। तो इसकी वजह से कस्टम मोल्डिंग में आने की वजह से हम लोगों का ये इंडस्ट्री बीइंग इनटू दिस ग्रुप, हम लोगों का इंडस्ट्री एक डेवलपमेंट हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब भी अगर कस्टम मोल्डिंग में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों के पास में एक स्टेबिलिटी रहेगा बीइंग इनटू द बिजनेस, क्योंकि कस्टम मोल्डिंग में ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें आपको तय की जाती है, उतना रीजनेबल प्रॉफिटेबिलिटी आप कमा सकते हैं। तो उसमें बहुत प्राइस वार तो नहीं रहता है, इतना मैं कह सकता हूँ, और रिस्पेक्ट भी मिलता है इसके अंदर। तो रोटेशनल मोल्डिंग कस्टम मोल्डिंग में आने के लिए इसके अंदर बैरियर्स क्या क्या है हम लोग जान लेते हैं। एक तो मेरे हिसाब से आज के डेट में चैलेंजेस इन रोटेशनल मोल्डिंग में आ जाते हैं कि हमारे पास में मशीन या मटेरियल ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग मशीन्स देख लेते हैं या मटेरियल देख लेते हैं तो वो काफ़ी एडवांस हो चुका है। हमारा मतलब जो इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ है वो ग्रोथ से भी कई गुना आगे हमारा मशीन मैन्युफैक्चरर्स और मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स आगे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को कोई, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई बैरियर्स है। तो कोर चैलेंजेस व्हाट आई ऑब्जर्व इन दिस इंडस्ट्रीज बीइंग इनटू द मतलब रोटेशनल मोल्डिंग में आने के लिए, कस्टम मोल्डिंग में आने के लिए, एक तो लैक ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन क्लैरिटी हमारे पास में नहीं रहता है। बहुत समय पे हम लोग ये देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और हम लोग कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास में ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, उसके क्लैरिटी ना होती नहीं है। तो हम लोगों को वो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो इर्द गिर्द पर्सपेक्टिव रहता है वो हम लोगों को मालूम रहता नहीं है। सेकेंडली प्रोसेस डिसिप्लिन। अभी प्रोसेस तो सब लोग जानते हैं, यू ऑल आर एक्सपर्ट हियर इन द प्रोसेस, बट इसके अंदर डिसिप्लिन प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट बनने से पहले अगर हम लोग उसका QCI प्लान अगर तैयार कर लेते हैं और वो प्लान डूज एंड डोंट्स तैयार कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों का लेबर फोर्स है उनको ट्रेन करते हैं, उसमें क्या तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर ये कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर्ड QC प्लान भी हम लोग, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर मिस कर लेते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत ईजी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कई सुना हम लोग मिस कर लेते हैं। थर्ड थिंग इज टूलिंग और मोल्ड डिज़ाइन। तो मोल्ड डिज़ाइन जो है हमारे यहाँ पे, अगर हम लोगों के पास में रेफरेंस गाइड तो बहुत है, डिज़ाइन स्टैंडर्ड तो है बहुत सारे, लेकिन ये डिज़ाइन स्टैंडर्ड के साथ में हम लोग बहुत कम समय में हम लोग रेफर करते हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन स्टैंडर्ड के साथ में रेफरेंस हम लोग कम लेते हैं। एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी हम लोगों को डिज़ाइन स्टैंडर्ड के मैच करना चाहिए। एज अ मोल्ड मैन्युफैक्चरर भी आज का डेट में मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत, अभी कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है ऑब्वियसली उसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोल्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर हम लोगों को प्रोडक्ट सही तरीके से मालूम है तो ऑब्वियसली उसका टूलिंग एंड मोल्ड डिज़ाइन भी अच्छी तरीके से। और जब भी ये हम लोग 3 फाउंडेशन, मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन है, डिज़ाइन क्लैरिटी होना और प्रोसेस डिसिप्लिन और टूलिंग कॉस्ट, ये जब भी फिक्स होता है तो एवरीथिंग एल्स बिकम ईजियर, प्रेडिक्टेबल एंड रिपीटेबल। हम लोग जब भी कस्टम मोल्डिंग में होते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू बी प्रेडिक्टेबल, हमेशा बनने वाला, क्योंकि रोटेशनल मोल्डिंग में ये प्रेडिक्टेबल देना, प्रोडक्ट आज का दिन में कितना प्रोडक्शन बनेगा या बनने वाला प्रोडक्ट मेरा उसी तरीके से बनेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें श्रिंकेज फैक्टर है, लेबर फैक्टर है, बहुत सारे पैरामीटर है। अगर ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं बता पाते सो दैट्स बिकम अ प्रॉब्लम। सो अगर ये चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग प्रेडिक्टेबल और रिपीटेबल भी हम लोग हो सकते हैं। देन अगर हमें ये करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इसके अंदर पहला तो शिफ्ट इन अप्रोच, शिफ्ट इन माइंड के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, बिकॉज इन रोटेशनल मोल्डिंग प्रोडक्ट एंट्री इज ईजी
जैसे मैंने बोला कि हम लोग कॉपी इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है कॉपी करना। लेकिन जब भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं तभी वो कॉपी करते समय हम लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि वो प्रोडक्ट का पीछे का मकसद क्या है, प्रोडक्ट कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और अगर मकसद कॉपी नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को उससे रिलेटेड जो बेनिफिट मिलने वाले वो नहीं मिलने वाले। सो वी कैनॉट कॉपी द मकसद हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। सो इसीलिए प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज हम लोग बना सकते हैं ऑब्वियसली इसलिए बनाना चाहिए कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए। सेकेंडली है कि हम लोग रोटोमोल्डिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह देखना चाहिए, ना ही कि ओनली प्रोडक्ट मेकिंग टूल की तरह देखेंगे। क्योंकि इन रियलिटी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ना ही उसको वेट चाहिए, ना ही शेप चाहिए, ना ही डायमेंशन चाहिए। तो आप बोलोगे कि इसके अंदर फिर कस्टमर को चाहिए क्या? तो कस्टमर ऑलवेज नीड सम स्पेसिफिक सॉल्यूशन for their problems, their needs, they are having some pains। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे हम लोग मेडिकल शॉप में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि मुझे क्रोसिन की गोली चाहिए। अभी क्रोसिन एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन एक्चुअली हमें क्रोसिन नहीं चाहिए होती। हमें कुछ हेडेक है या बुखार है, मेरे बदन में दर्द है, उसके लिए मुझे वो गोली चाहिए रहता है। अगर वो दर्द हम लोगों ने समझ लिया तो डेफिनेटली हम लोग उसको एक बेटर मेडिसिन दे सकते हैं। तो उसको क्रोसिन नहीं चाहिए, उसको डोलो भी चल जाएगा, दूसरा कोई भी चल जाएगा। हम लोग वाटर टैंक बिजनेस में हैं, एक्चुअली हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट? तो एक्चुअली कस्टमर को वाटर टैंक नहीं चाहिए, उसका प्रॉब्लम उसके घर में नल में पानी नहीं आ रहा है, तो उसको स्टोरेज का इश्यू है। तो पहले तो हमारा अप्रोच ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर का दर्द क्या है, कस्टमर के नीड क्या है, उसके पेन पॉइंट क्या है। अगर वो हम लोग समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हम लोग एक बेटर प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। और ये जब ये हम लोग कॉपी कर लेते प्रोडक्ट, तभी ये सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द रहने वाले हम लोग कॉपी नहीं कर पाते, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्ट इन कॉस्ट आउट हो जाता है। मतलब रॉ मटेरियल पर केजी रॉ मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से हमारा इसके अंदर हम लोग लो मार्जिन के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो व्हाट इज अ कस्टम मोल्डिंग? ये सारे लोगों को मालूम है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, कन्वर्टिंग नीड इनटू प्रैक्टिकल डिजाइन एंड इंश्योरिंग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। सो एज सिंपल इट इज। लेकिन इसके अंदर हम लोग जब भी काम कर लेते हैं तो इसके कोई की प्रिंसिपल्स भी है। सो क्लैरिटी इन व्हाट एंड व्हाई, कस्टमर को प्रोडक्ट कौन सा चाहिए और वो क्यों चाहिए, वाई हाउ प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये तो आप लोग एक्सपर्ट है। प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज आपको दे किसी को, मतलब मुझे नहीं लगता आपको सब लोगों को मालूम है। लेकिन पहले ये प्रोडक्ट क्या चाहिए और उसे प्रोडक्ट क्यों चाहिए, इसके बारे में हम लोगों के पास में क्लियरिटी होना जरूरी है। देन डिज़ाइन एक्यूरेसी, हम लोगों के प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइन एक्यूरेसी पहले होना चाहिए। मटेरियल सिलेक्शन राइट होना चाहिए आपका, क्योंकि मटेरियल सिलेक्शन के समय में हमारे पास में समझिए कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज में दे रहे हैं या आउटसाइड एरिया में दे रहे हैं या कौन सा एप्लीकेशन में, अगर डिफेंस में प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम लोग सिर्फ आज का डेट में हम लोग ब्यूटेन बेस में ही मैक्सिमम अभी प्लेयर्स हैं, ब्यूटेन बेस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मेटलॉसिन्स हैं, तो ये सारी सिलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग कस्टम मोल्डिंग में ये काम कर लेते हैं। देन कस्टम मोल्डिंग में प्रोसेस डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑलवेज कस्टम डिज़ाइन जब भी हम लोग करते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू सी अ वैल्यू क्रिएशन फॉर द कस्टमर, क्योंकि कस्टम डिज़ाइन ही एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम लोग कस्टमर के लिए वैल्यू कर लेते हैं। और एनीथिंग, क्योंकि हम लोग जब भी बिजनेस में रहते हैं, एनी पेनी स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट्स या कॉस्टिंग में अगर ऐड हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे कि अभी समझो हम लोगों ने अभी बहुत सारे समय पे हम लोग सुनते हैं कि हमने 6 लेयर 7 लेयर टैंक बनाते हैं, राइट? यस, दैट प्रूव्स अ कैपेबिलिटी ऑफ द रोटेशनल मोल्डिंग। बट अगर ये लेयर्स अगर मेरे कस्टमर के प्रोडक्ट में या कस्टमर में कोई अगर मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है, उसे कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है, या तो आइदर कस्टमर को बेनिफिट देना चाहिए तो मुझे देना चाहिए, या तो एज अ मैन्युफैक्चरर हमें देना चाहिए। तो ऑलवेज कस्टमर को कोई बेनिफिट अगर नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है कि ऐसे फीचर्स जो है हम लोगों को मतलब इसमें वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है, और इसमें हमारे प्रोसेस एज अ बीइंग इनटू द इंडस्ट्री इसके लिए भी हार्मफुल है। तो हम लोग वैल्यू क्या क्रिएट कर सकते हैं, वी हैव टू ऑलवेज हैव टू सी what benefits we are going to give the customers. So always product के अंदर so unwanted feature नहीं रहना चाहिए। तो always while design consideration हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उसका फंक्शनल
वैल्यू क्या है, उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या है, और थर्ड एस्थेटिक। अगर ये चार चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा। देन व्हाई कस्टम रोटो मोल्डिंग विंस, मुझे लगता है इसके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस की जरूरत है। अभी ऑब्वियसली कस्टम मोल्डिंग क्यों चाहिए या रोटेशनल मोल्डिंग क्यों चाहिए सबको मालूम है, लेकिन ये इंडस्ट्री को अवेयर है कि हमारा जो बाहर इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, या कोई भी इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर हमारे इंडस्ट्रीज के बारे में कितना अवेयरनेस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस तो वो लोग देने वाले हैं हमें। सो दैट अवेयरनेस क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जहाँ पे भी हम लोगों को मौका मिलता है, तो ऑलवेज वी हैव टू स्पीक अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेसेस। सो ये प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव, सो आई एम शेयरिंग जस्ट फ्यू। कॉस्ट इफेक्टिव है, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स हॉलो शेप्स हम लोग बड़े बड़े शेप्स बना सकते हैं, हमारे पास में इसका टूलिंग कॉस्ट कम है, और स्ट्रेस फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। अभी इंजेक्शन मोल्डिंग या दूसरे अगर कंपेरेटिवली हम लोग ये देख लेंगे, तो ऑब्वियसली रोटेशनल मोल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोग अगर प्रॉपरली डिज़ाइन किए करते हैं प्रोडक्ट, तो इससे स्ट्रेस फ्री प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोनों हमारे पास में ये कोई भी मतलब अभी प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि प्रोडक्ट के अंदर स्केलेबिलिटी इन स्ट्रेंथ। हम लोग अगर 5 mm का प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, अगर हमें लगता है कि नहीं इसके अंदर हमारे पास में स्ट्रेंथ नहीं है, तो यू कैन गो अप टू एनी स्ट्रेंथ, यू कैन स्केल 8 mm, 10 mm, 9 mm, और वो लग्जरी जो है हमारे ये प्रोसेस में है, ये लग्जरी और कोई प्रोसेस में अपने को दिखती नहीं है, राइट। तो ये लग्जरी हम लोगों को कम्युनिकेट, लार्ज प्रोडक्ट कैपेबिलिटी है, देन फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है इसके अंदर, राइट। तो इसके साथ में कोई डिनाई तो नहीं करेगा, बट ये सारे फीचर्स हैं, हम लोगों को इंडस्ट्रीज को जहाँ पे भी हम लोगों को मौका मिले वहाँ पे हम लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्रीज को मालूम पड़े भाई रोटेशनल मोल्डिंग नाम का भी प्रोसेस बहुत अच्छा है और इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, और बहुत सारे प्रोसेस हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। मेटल है, FRP है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो आई विल शेयर यू, आप बोलेंगे ये कैसे करेंगे, मैं आई विल शेयर यू वन केस स्टडी विच आई हैव डन कस्टम मोल्डिंग 10 years, almost 12 years back for the one company. Okay, so it is a case study of a returnable packaging. ये कंपनी के अंदर ये क्या था, ये कंपनी के RDC ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, सेंट्रलाइज प्लांट है इनका, बड़ा प्लांट है, और ये कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, और उनके RDC सेंटर 70 RDC सेंटर ऑल ओवर इंडिया करते थे। तो जब भी ये यूज प्रोडक्ट सेंड करते थे, तो दे आर यूजिंग ऑलमोस्ट 2500 pallets per month for sending this their material to different RDC centers, और वहाँ पे पैलेट जाते थे, और वुडन पैलेट है तो सस्ते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये पैलेट गया वहाँ पे उनको वो फेंकना पड़ता था, राइट। सो उनके प्रॉब्लम क्या थे, उनके प्रॉब्लम एक तो RDC सेंटर में जाने के बाद में वहाँ पे एक तो उनको पैलेट फेंकने पड़ते थे, सेकेंड इनका प्लांट के अंदर डेली करीबन 150 पैलेट्स उनके लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो उनका वुडन पैलेट्स का वेंडर है, वो उन्होंने उधर ही अड्डा बना लिया था 2-4 लोगों का, और वहाँ पे भी रिपेयरिंग ये वर्क कंटिन्यूसली उनका चलता था। और यू कैन इमेजिन 7 दिन का स्टॉक है, तो करीबन 1000 पैलेट्स दे हैव टू कीप इन स्टॉक। ओके, सो वुडन पैलेट्स का। देन अदर प्रॉब्लम वुडन पैलेट्स रिलेटेड, वो और भी प्रॉब्लम। तो हमने इनका पूरा स्टडी किया, पूरा प्रोसेस को, और मतलब कैसे पैलेट जाएगा, कहाँ पे पैलेट जाएगा, लोडिंग कैसे होता है, बाइंडिंग कैसे होता है, फोर्कलिफ्ट से कैसे मूवमेंट होगा, रैकिंग में कैसे जाएगा, गाड़ी में कैसे बैठेगा, एक के ऊपर एक बैठेगा कि नहीं, या उधर जाने के बाद में अनलोडिंग कैसे होगा पैलेट्स का। देन सेकेंडली उधर जाने के बाद में उसका क्या करेंगे, उधर किस तरह से हैंडल करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस डिज़ाइन करने के बाद में मैंने इनको करीबन 6800 पैलेट्स उनको मैंने सजेस्ट किए, इनका सिस्टम में डाल दिए। और ये सिस्टम ऐसा था कि यहाँ पे पैलेट जाएंगे वहाँ पे RDCs में, और RDCs से पैलेट उनके वापस आएंगे बाय ट्रांसपोर्ट से। तो ये करने के बाद में इनका रिजल्ट क्या मिला, तो मैं रिजल्ट आपको शेयर करना चाहता हूँ। उनको करीबन 1.5 करोड़ पर ईयर सेविंग उनका कस्टमर को मिला ये करने की वजह से। सेकेंडली इनका जो पैकिंग साइज था वो इम्प्रूव हो गया, हैंडलिंग सिस्टम और सिस्टमेटिक, एंड रिडक्शन इन रिजेक्शन। उनका जो प्रोडक्ट था बिकॉज ऑफ वुडन पैलेट की वजह से या जो भी प्रोसेसेस है उनकी वजह से जो करीबन 9% उनका रिजेक्शन होता था, दैट कम डाउन टू 0.5%। सेकेंडली
इन्होंने अभी ये करते समय हम लोगों ने कैसे किया, हर एक लेवल पे यूज़र के साथ में इंटरेक्शन किया और यूज़र से साथ में इनको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया। तो हर एक जगह पे प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसे होगी और ये मूवमेंट के ऊपर हर जगह पे हम लोगों ने काम किया, बिकॉज ये प्रोजेक्ट के अंदर मतलब आप ओनली जूनियर पर्सन नहीं है, सारे सीनियर टीम। तो उनका कंपनी का ओवरऑल हैंडलिंग, प्रोडक्ट हैंडलिंग का कल्चर चेंज हो गया। और ये उनका अभी 1.5 ईयर, और मैंने पिछले साल मतलब मई 2025 में फीडबैक लिया था, उनका सिर्फ 57 पैलेट्स उनके डैमेज हो गया था। वो भी बोल रहे थे कि भाई हम लोगों का ये जो पैलेट्स है इसीलिए डैमेज हो गया, बिकॉज इन मटेरियल हैंडलिंग की वजह से डैमेज हो गया। सो ये पैलेट्स कीप ऑन गिविंग देम वैल्यू। सो इफ यू आर गिविंग सच काइंड ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, कस्टमर आपसे ये नहीं पूछेगा, प्राइस नहीं पूछेगा, पर केजी पूछेगा नहीं। और आज के डेट में उनके दूसरे प्लांट में भी जब भी अगर उनका कोई या आ जाता है तो वहीं पे भी सिंगल कोटेशन आपका ऑर्डर चला जाएगा। ऑब्वियसली वी हैव टू बी रीजनेबल, बट इस तरह से हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो सेकेंड, यू कैन सी ये प्रोडक्ट आपको दिखने में ऑब्वियसली सिंपल दिखते होंगे, बट इनकी वजह से अभी ये जो फोटो आपको दिख रहा है तो ये कंटेनर है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये भी मैंने कई साल पहले बनाया था। तो ये इंजीनियरिंग कंपनी है, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी है। इंजीनियरिंग कंपनी उनका आप देखोगे, इंजीनियरिंग कंपनी नट बोल्ट्स और उनका इंजीनियरिंग स्पेस बहुत थोड़ा मेसी रहता है। और उनको ये चैलेंज ऐसा आ रहा है कि हम लोग को हमारा स्टॉक किस तरह से मेंटेन करें और किस तरह से हम लोगों को उसको हमारा स्टॉक डाउन करना है, स्टॉक मैनेज करना है। और उनका एक जापानीज कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा था, तो उनके डायरेक्टर्स वगैरह काफ़ी इसमें थे। तो कई सारे कंपनी को उन्होंने अप्रोच कर लिया था कि करेंगे क्या, बट सब ने ये पूरा एनवायरनमेंट देख के वहाँ पे गिव अप कर दिया था। देन दे कॉल मी एंड देन वी हैव गिव द सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। और उनको ये करने के बाद में उनको मतलब उनका एमडी का अप्रिसिएशन लेटर भी आ गया हमारे पास में। देन उनका जापानीज कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन भी हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का अगर हम लोग वैल्यू क्रिएशन करते हैं बाय आवर कस्टम मोल्डिंग डिज़ाइन और नॉलेज, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपके साथ में जुड़ा रहेगा। दे विल बी योर पार्टनर। They will not consider you as a supplier. They will be consider you as a partner then. And then यहाँ पे वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि भाई मुझे पर केजी क्या है, नहीं पूछेंगे। और करेंगे भी तो भी उनको मतलब सिर्फ ये अभी ये मैंने जितना ये है हर एक प्रोडक्ट ये सेफ दिख रहा है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी रहता है, एक पर्पज़ रहता है वो प्रोडक्ट बनाने का। अगर वो हम लोग कॉपी नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके हम लोग मिस करेगा। अगर हम लोग उसमें 2 किलो कम कर दे, 2 किलो ज़्यादा बढ़ेगा, इट डजंट मैटर, लेकिन मटेरियल क्या यूज़ किया है, किस तरह से कहाँ पे रीइंफोर्समेंट करना चाहिए, कहाँ पे रिबिंग आएगा, कहाँ पे उसका फंक्शनल डायमेंशन है, ये सारी चीज़ें भी कॉपी होना जरूरी है अगर हम लोग प्रोडक्ट कॉपी कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो तो उनका इन्वेंट्री जो रेशियो है, इन्वेंट्री भी डाउन हो गया, उनका प्रॉपर पेस भी आ गया। Then I will show these are the some kind of a products. Product might be seen simple, but each and every product has some story and some savings. Okay, and these all are the अभी ये प्रोडक्ट अगर देखोगे तो ये these are the simple boxes हैं। अभी ये अगर देखोगे स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट में भी आप देखोगे इसके अंदर करीबन 4 लाख का एक प्रोडक्ट एक ग्रू में बैठता है। अगर 4 लाख का प्रोडक्ट एक ग्रू में बैठेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी उसकी उसी तरह से उसको डेवलपमेंट कॉस्ट भी लगेगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। फर्स्ट thing is that we have to see what is customer need, what is their pain points. So I think हमारे पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कस्टम मोल्डिंग के लिए। आज का डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ऑटोमेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की नीड है उनके लिए भी है। And I think roto molding industry has a very, very promising future than many competing processes if we will consider it right, if we will do it right, then और इसके अंदर ये नहीं कि इसके अंदर कंपटीशन कम होगा, बिकॉज जैसे जैसे ये प्रोडक्ट के बारे में या प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस होता जाएगा ऑब्वियसली ये मार्केट का साइज कई गुना बढ़ता जाएगा। और वहाँ पे जो हम लोग रेड बुल फाइटिंग हम लोग करते हैं वो फाइटिंग यहाँ पे नहीं होगा। सो हाउ वी कैन डू इट साइंटिफिक तरीके से हम लोग कस्टम मोल्डिंग का प्रोसेस हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। सो हम लोग कोई भी डिज़ाइन प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली तो पहला स्टेप होता है एम्पैथाइज। मतलब यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग पैटर्न के सब देखेंगे तो रियल यूज़र के इनसाइट्स हम लोगों को वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए, यूज़र किस तरह से बिहेव, यूज़र का बिहेवियर क्या है,
उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में इंसाइट गैदर करते हैं. So we have to empathize with the user, then define, then ideate. I will explain this in next slide. Ideate, prototype and test. So design empathy. इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मतलब रोटेशनल मोल्डिंग के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग यूज़र को जाके मिलते हैं, यूज़र के पूछते हैं उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनको क्यों प्रोडक्ट चाहिए, उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम क्लीनलीनेस का है या उसको कॉस्ट का प्रॉब्लम है या उनको हैंडलिंग है या डैमेजेस हो रहे हैं, उनके और कोई प्रोडक्ट डैमेजेस हो रहे हैं क्या, से एस्थेटिक है या मशीन कॉम्पेटिबिलिटी, ऐसे अलग अलग तरीके से उनके आप समझो ओनर से बात करिए, सप्लाई चेन मैनेजर से बात कर लीजिए, यूज़र से, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्ट डील कर रहा है उसके साथ में बैठ के हम लोगों को ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है एम्पैथाइज स्टेज में. वी हैव टू पुट आवर सेल्फ इन टू द कस्टमर शूज, इन देयर शूज. वी आर एक्सपर्ट इन आवर प्रोसेसेस, नॉट एक्चुअल कस्टमर क्या प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको क्यों यूज कर रहा है, उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट नहीं है. सो ऑलवेज वी हैव टू बी एम्पैथेटिक फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ यूजर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि आज का डेट में अगर कोई भी इनोवेशन देखोगे तो इट्स यूजर सेंट्रिक, हम लोगों ने पढ़ा होगा या हम लोग देखते हैं. सो इट्स ऑलवेज यूजर सेंट्रिक अप्रोच रहता है. आज का डेट में कोई भी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं या कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, इट्स ऑलवेज वी आर सेइंग यूआई, यूज़र फ्रेंडली होता है. अगर उसके यूज़र ही अगर उसमें हमें मिलेगा नहीं तो वो एप्लीकेशन फेल हो सकता है. लाइकवाइज यहाँ पे भी ये होता है कि हम लोग यूज़र पर्सपेक्टिव से, यूज़र किस तरह से प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है, यूज़र को क्या प्रॉब्लम है आ रही है, यूज़र किस तरह से वो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट उठाने में उसको तकलीफ हो रही है तो वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा. आपका प्रोडक्ट वहीं पे बोलेगा कि वहीं पे आपको एक रेजिस्टेंस आएगा. ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट चलेगा, आपको कोई आपने अगर बना के दिया है प्रोडक्ट तो वो चलेगा जरूर, लेकिन वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आने का आपको चांसेस है, वहाँ पे आपको आगे वो प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं. सो वी हैव टू फाइंड आउट यूजर लेवल पे क्या चल रहा है. सो दिस इज अबाउट द डिजाइन एम्पैथी. देन एक बार हमारे पास में डेटा आ जाता है यूजर का, देन हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कस्टमर का रियल नीड क्या है, हम लोगों को उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं. तो वी हैव टू, और जो भी डेटा आया उसको एनालिसिस करना है. भाई ये प्रॉब्लम हम लोगों को एक इकट्ठा करना है और हम लोगों को देखना है कि भाई ये यूज़र के ये प्रॉब्लम है, उसको यूज़र को ये इश्यूज़ हैं और ये मुझे, तो हम लोगों को पहले मतलब अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसके सारे इश्यूज़ को लिस्ट डाउन कर दिया, डिफाइन कर दिया. हम लोगों के दिमाग में अभी क्लैरिटी है हमें करना क्या है. सो इट्स अ डिफाइन स्टेज. और थर्ड स्टेज इसमें आ जाता है कि आइडिएशन. तो आइडिएट टेस्ट में क्या कर लेते हैं कि भाई भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्लियरिटी आ गया, तो थर्ड स्टेज में हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन इट कुड बी, हम लोग क्या प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं. फिर हमारा मतलब, और जब भी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तो ऑलवेज वी हैव टू सी, कोई भी आइडिया गलत नहीं होता है, वर्स्ट टू वर्स्ट आइडिया इज अ गुड आइडिया. सो एक बार 4, 5, 6 आइडिया आने के बाद में जब भी हम लोग आइडिया के ऊपर कंटिन्यूसली ब्रेनस्टॉर्म करते रहते हैं तो देन फाइनली हमारे पास में एक आइडिया के ऊपर हम लोगों को लगता है कि हाँ ये आइडिया चल सकता है. देन दैट आइडिया टू बी कम्युनिकेटेड अगेन विद द बैक टू द कस्टमर. उनके साथ में हम लोगों को कम्युनिकेशन करना चाहिए यूजर के, भाई ये चल सकता है क्या. और देन बाद में वी हैव टू कंक्लूड वन आइडिया. एंड देन प्रोटोटाइप एंड डिजाइन. अभी प्रोटोटाइप डिजाइन हम लोग इधर डायरेक्टली मोल्ड नहीं बनाते हैं, हम लोगों को स्टिमुलेशन करना पड़ता है. जैसे प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में हम लोगों ने डिजाइन कर दिया और वो डिजाइन को टू एंड फ्रो हम लोगों ने इसमें किस तरह से वार्पेज आएगा, किस तरह से श्रिंकेज आएगा, कहाँ पे स्टिफनेस देने की जरूरत है, या यूज़र के साथ में हम लोगों ने करने पर कितना इसके लोड क्या आ सकता है, कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पे रीइंफोर्समेंट अगर कहाँ पे इंसर्ट देने की जरूरत है. तो ऑल काइंड ऑफ दिस फंक्शनैलिटी वी हैव टू डू इट इन अ सिमुलेशन प्रोसेस. डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड प्रेडिक्शन करके हम लोगों को इसके अंदर ये देना पड़ता है. देन ऑब्वियसली इसके अंदर परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन भी हम लोगों को करना पड़ता है, एस्टिमेशन. देन फाइनल स्टेज आता है वैलिडेशन एंड टेस्टिंग. ये टेस्ट की, ये भी अभी तक प्रोडक्ट बना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को फाइनल होने के बाद में, एक फाइनल शेप में आने के बाद में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर किस तरह के टेस्ट होने वाले हैं. बिकॉज प्रोडक्ट हैज़ टू फेस रियल लाइफ एप्लीकेशंस. तो वो केस में किस तरह से हमारे टेस्टिंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे अभी देखो जो प्लास्टिक रिलेटेड स्टैंडर्ड टेस्ट्स हैं वो तो होने वाले हैं, वो तो हम लोगों को करना है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट इसके अलावा अगर कोई टेस्ट है जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में, अगर कोई बेंडिंग टेस्ट है, कोई आपका कॉम्प्रेशन टेस्ट है, ये टाइप के अगर टेस्ट करने जरूरी है, या लीकेज टेस्ट हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट हम लोगों को पहले से डिफाइन करना पड़ेगा. और वो टेस्ट को पास करने के लिए पहले से हम लोगों के डिज़ाइन में वो तरह के हम लोगों को प्रोविजन रखने पड़ेंगे.
And once it is validated, then we can say production is predictable. We can go ahead then. Then as you all know, mold है. Then we can अभी हमारे पास में पूरा ढांचा रेडी है. Then we can go for the mold. मोल्ड हम लोग दे सकते हैं. तो मोल्ड डिज़ाइन में आप लोगों को मालूम है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, क्योंकि आप सारे लोगों को भी मोल्ड का प्रोसेस कैसा है ये तो आप सब लोगों को यू आर वेल अवेयर अबाउट इट. मतलब पार्टिंग लाइन या क्लैंप है, नट बोल्ट है, बट ऑलवेज वेंट जो है ऑलवेज हैज़ टू बी प्रॉपर, हमेशा देना पड़ेगा हम लोगों को. मटेरियल्स है, देन एज आई सेड मटेरियल हैज़ टू बी सिलेक्टेड प्रॉपरली. मतलब MFI है, क्या MFI में हम लोग ये कर रहे हैं, UV है, डेंसिटी है, कोल्ड रूम में जाने वाला है, क्या माइनस टेम्परेचर में जाने वाला है या प्लस टेम्परेचर में जाने वाला है, वेदरेबिलिटी कैसा है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है क्या, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे टेम्परेचर्स क्या रहेंगे, हमारे वॉल थिकनेस क्या होनी चाहिए, वार्पेजेस क्या आ सकता है, श्रिंकेजेस किस तरह से आ सकता है, ये सारे कंसिडरेशन हम लोगों को इसमें मटेरियल सिलेक्शन करते समय हम लोगों को ये करना पड़ेगा. या पाउडर मेश वगैरह, दिस ऑल थिंग्स आई थिंक यू ऑल आर फॉलोइंग, राइट. देन ऑब्वियसली प्रोसेसिंग पैरामीटर के ऊपर ऑलवेज हम लोगों को सब्जेक्टिव होते हैं, बिकॉज अगर मेरे मशीन में 250 डिग्री टेम्परेचर चलता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी वो किसी और के मशीन में भी चलेगा, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्टिव. आपका सेंसर कहाँ पे लगा है, या प्रोसेस मोल्ड क्या साइज़ का है, या कितने नंबर ऑफ मोल्ड्स लगे हैं. सो इट्स इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस है. तो इट्स देन RPM वी हैव टू सी. एक RPM हम लोगों के पास में रेफरेंस बुक, अभी काफ़ी अच्छे बुक्स रेफरेंस बुक हमारे पास में अवेलेबल है, तो वी हैव टू सी ऑल दिस रेफरेंसेस वाइल मोल्डिंग. Then mold clamping है, parting line cleaning, that is always every speaker or whenever there is a chance everyone saying भाई parting line clear होना चाहिए. लेकिन ये often मैक्सिमम टाइम पे ये देखा जाता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं मिस कर लेते हैं. देन प्रॉब्लम बिकॉज बिगर एंड बिगर, बिकॉज पार्टिंग लाइन क्लीन नहीं किया तो बाद में पार्टिंग लाइन आ गया, और पार्टिंग लाइन आ गया इसलिए उसके अंदर आपके फिर से होल आ गए. और हमेशा हम लोग ये देख लेते हैं कि वेंटिंग पाइप क्लीन नहीं किया तो प्रॉब्लम आ रहे हैं. तो ऑलवेज वी हैव टू इंश्योर ऑल दिस प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस पैरामीटर. देन मैक्सिमम ओवरलुक होने वाला है अगर पैरामीटर कोई है तो वो कूलिंग टाइम और डिमोल्डिंग, क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग हीटिंग टाइम तो बराबर देते हैं 12 मिनट 15 मिनट या 16 मिनट जो भी है, बट कूलिंग टाइम हम लोग को लगता है बाहर है घूम रहा है. बट यहाँ अगर हम लोगों ने कूलिंग टाइम को अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं रखा तो यहाँ पे हम लोगों के बहुत सारे श्रिंकेज या हमारे स्ट्रेस इश्यूज भी आ सकते हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन आपका प्रोडक्ट का शेप किस तरह से है. तो थर्ड एक ओवरलुक वाला मुझे लगता है कि हम लोग मोल्ड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहुत सारे समय पे हम लोग मिस कर लेते हैं. अगर ग्रेविटी हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने अगर प्रॉपरली नहीं किया है तो उसका प्रोसेस मटेरियल का जो फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से मेल्टिंग नहीं होगा. देन हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा थिकनेस आ रहा है, कोई लगे भाई थिकनेस कम आ रहा है, और वहाँ पे हम लोगों के पास में एक सोल्यूशन रहता है कि वी इंक्रीज हमारा पाउडर वेट, और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारा कॉस्टिंग में फिर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है. इवन और रोटो मोल्डिंग का इंडस्ट्री का ये स्टैंडर्ड है कि लोएस्ट थिकनेस इज योर थिकनेस, राइट. तो अगर यूनिफॉर्म थिकनेस अगर हम लोग मेंटेन करते हैं, और ये मेरे ख्याल से हम लोगों को ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मोल्ड का कर लेते हैं, ऑब्वियसली वी कैन हैव अ गुड थिकनेस इन आवर रोटेशनल मोल्डिंग. सो पोस्ट मोल्डिंग कुछ पिक्चर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो भी ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट के शेप के ऊपर आप लोगों को ये करना पड़ेगा. सो देयर आर प्रोसेस डिसिप्लिन्स एज आई सेड. तो कंसिस्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग साइकिल जो मैं कुछ टूलिंग मेंटेनेंस दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपीटेबिलिटी. हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों का प्रोसेस हम लोगों के पास में बहुत इसका जरूरी नहीं है कि हमारे पास में बड़े बड़े फॉर्मेट बहुत अच्छे फॉर्मेट होना चाहिए. जो लैंग्वेज में हमें आ जाता है वो प्रोसेस अगर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कर दिया और वो वर्कर को हम लोगों ने पढ़ाया एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, नॉट नेसेसरी हमारे पास में बहुत अच्छा सा फॉर्मेट होना चाहिए. हमने अगर मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आता है उसमें 4 पॉइंट भाई ये डूज है, ये डोंट्स है, ये प्रोसेस है, तो उसके अंदर लिखा तो उसमें क्या है रिपीटेबिलिटी का आपके पास में एक चांसेस अच्छा रहता है, एंड देन इट इज़ डॉक्यूमेंटेड रहता है. तो उसके ऊपर हम लोगों को हमारे ऑपरेटर के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहती है. देन सेकेंडली हमारे पास में हम लोग ये प्रोसेस, ये तो मालूम ही है आपको, मैं इसके ऊपर अभी ज़्यादा ये नहीं करूँगा,
obviously, like a mold hai, resin process, these all are the standard processes हैं. So already ये कर लिया. So what are, I think कि हमारे industries के अंदर opportunity हमारे पास में काफ़ी सारी है इंडिया के अंदर. मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लाइट दे दूंगा, बिकॉज ऑटोमोबाइल है इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, दैन कई सारे OEMs हैं, because India is, as you all aware, India is the fastest growing and largest by population in the world. So it's a third and largest defense budget है आज का डेट में. और हम लोग देखते हैं कि अभी 85 कंट्रीज़ के अंदर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी है. We are exporting almost 85 countries, right? And we are a second largest mobile manufacturer in the world. So this kind of opportunity we are having. So October 2025, India hosts 123 unicorns, and 11 new startup joined Unicorn Club in 2025. Per capita income is already surged almost 188%. Only major economy in the world which is a declining dependency ratio, and we are having, the maximum number of people, those are working force in India. And if you will see, the 49% of the world real-time payment transactions of the world, total world transactions, it's a 49% we are contributing as on today. And in October 2000, if you are following news, in October 2025, a historic high 16.58 billion transaction in a single month done in India. And in India, operational airports increased to 163, which was in 2025, which was, the 74 in 2014. And I think by 2047, it is, the ambitious target of 300 airports in India. So you can see the kind of infrastructure development in India is happening. So kind of opportunity in India is, very great. So high-speed corridors, which you all know, construction is a pace of 29 kilometers per day throughout last year, 24-25. 99% rural road connectivity program under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, rail, water, these all projects are going on, and these all are going as per the plan of the government, right? And India has crossed 125 gigawatt renewable capacity in energy sector, because energy is very important for any manufacturing, country. So and it is targeting 500 gigawatt by 2030. By 2027, we will cross 27 or 28. It is predicted by many economists all over the world. It's a 5 trillion mark. We will took over Germany's economy, and will become a third largest economy by GDP all over world. And if we will consider purchase power parity, how much consumption we are doing, right, globally. So currently we are on a third globally, and second soon in global GDP, by considering, how much products we are consuming. So India is, itself is very consumer market. Producer market is there. Definitely we are producing more, but definitely, and that's the reason why world is seeing us as a, global growth. So by 2025, India's purchase power parity GDP could reach around 20.7 trillion, and now earlier it was, the China plus one, but now if you will see, the global approach has changed to India first approach, right? And in the recent news, if you follow the news, the trade deficit narrowed to 24.53 billion from October. This October, it was $41.68 billion. And in spite of the Trump 50% dollar, you can see such kind of a growth in India. So you can see the kind of opportunity in India. So if you will see, the opportunities are there. Sorry, opportunities are there. Only thing is that how much opportunities you can do. अभी आप देखोगे कि opportunities हमारे पास में है. Only thing is that how much we perform. It's not about how much opportunity, how much you perform. Take your share and perform. And being into the industries, we are having, the tremendous amount of potential that is yet not limelight
एंड बीइंग इनटू द इंडस्ट्री, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ये इंडस्ट्री को लाइमलाइट में लाए, हम लोगों को ये इंडस्ट्रीज को आगे लेके आए। डिफेंस में है, अलग अलग सेक्टर में हम लोग इसको ला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, and definitely we can transform this industry together. Thank you very much. Could you please put your hands together a little louder? Requesting you, sir, to please be on stage. So, could you please come back? Would like to request Mr. Gopal Jangid ji to please come up on stage to felicitate our speaker, Krishna Marathe. Mr. Gopal Jangid, Bhuvan Industries, Ahmedabad. Let's put our hands together, everyone. Well, would like